रिकॉर्ड करने के लिए, इन केस आई फॉरगेट, मेक मी रिमेम्बर कि मुझे क्लास रिकॉर्ड करना है. तो आई कैन से दैट बी इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी is there in set A. I can say that B is contained in A, है ना? Or I can also say that A contains B. ऐसा क्यों हो रहा है? Because every element of set B is also there in set A. It's because of the fact if some element A belongs to set B, the symbol is for belongs to. It implies that A belongs to A also. So that is why we say that B is contained in A or A contains B. अब set C के बारे में can we say the same thing? Look at the set C. Set C has element 1, which is also there in set A. है ना? But what about 4? 4 is not there. 4 belongs to set C, but 4 does not belong to set A. That means the entire set C is not there in set A. So we can say that A is not containing set C. What about D? D is also same story. 3 and 2 are there, but 5 is in the set D, but 5 does not belong to set A. Null set, it doesn't have any element. It is basically having no element inside it. Remember that if by mistake you write 5 inside the braces, it won't be a null set. If you write 0 inside braces, it will not be a null set. For a set to be a null set, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए. तो या तो तुम लिखोगे 5 और braces. What about F? F में भी प्रॉब्लम आ रही है because 7 is there in the set F, but 7 does not belong to A. What about G? G तो basically A के equal ही है ना? So G is basically equal to A. So if this kind of situation is there, then we say that set B is subset of A. So I can say that set B is subset of set A. कैसे read करोगे? B is subset of A. And it basically implies that B set B का हर element set A में होगा. That is the meaning of B is subset of A. Symbol is this. I can also say that A is superset of B. A is superset of B. So when I say that B is subset of A is superset of B. कोई भी सेट हमेशा अपना खुद का सबसेट होगा, ठीक है? लाइक यहां पे G is subset of A. Every set will be a subset of itself. And for that matter, null set will always be subset of any set. Null set, that is phi, is always subset of any set. Because null set doesn't have anything. So null set हमेशा किसी भी set का subset होगा. तो सबसेट एंड सुपरसेट क्लियर हो गया? दिव्शा, Yes, yes. मायरा, तुम्हें बोली थी क्लास ऑफलाइन कर लो वहां से. तुम हम्म, तुम्हारे सेक्शन में है वो? हाँ मेरे पीछे बैठती है. क्या उसके कितने मार्क्स आए? मैंने नहीं पूछा नहीं. अच्छा, ऑल राइट. लिख लिया? Now the next question is, suppose we are given with some kind of set like A is 1, 2, 3. We know that cardinal number of set A is 3. Number of distinct elements in a set is cardinal number. It is represented by n of A, n of B, n of C, whatever. So cardinal number of a set is basically number of distinct elements of the set. अब question ये आता है
किसी भी गिवन सेट के हम कितने सबसेट बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज चैप्टर कॉल्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो हम पढ़ेंगे बाद में, नॉट नाउ, 11th क्लास में ही है, वेरी इंटरेस्टिंग। सो देयर विल स्टडी दैट, अगर सपोज हमारे पास n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, and you want to select some r elements out of those, then this is a formula ncr। उसको यूज करके वी कैन फाइंड आउट कितने सबसेट्स बनेंगे। हो सकता है तुम इसमें से कोई भी एलिमेंट डालो, ठीक है। आई डोंट टेक एनी सेट, एनी एलिमेंट ऑफ द सेट 1 2 3, तो क्या बन जाएगा वो, a null set। out of 1 2 3 you don't select any element, मतलब इट्स a null set, कोई भी सेलेक्ट नहीं किया। यू मे सेलेक्ट एग्जैक्टली वन। सी एन सी आर का वैसे फॉर्मूला होता है n आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एक और नई चीज में पढ़ने को मिलेगी, फैक्टोरियल, विच यू हैव नेवर स्टडीड अर्लियर। व्हाट इज अ फैक्टोरियल? A factorial is continued product of n natural numbers। सपोज मेरे को n फैक्टोरियल बताना है, होगा n इंटू n-1 n-2 डैश डैश 3 2 1। जैसे सपोज आई वांट टू नो व्हाट इज 1 फैक्टोरियल, मतलब सिर्फ 1 पे रुक जाएगा, 1 आंसर आएगा। आई वांट टू नो व्हाट इज 2 फैक्टोरियल, इट वुड बी 2 into 1, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो फिर ये 2 से शुरू हो जाएगा, 2 से लेके 1 तक आंसर 2 आएगा। आई वांट टू नो व्हाट इज 3 फैक्टोरियल, it would be 3 into 2 into 1, that is 6। If I want to know what is 4 factorial, 4 into 3, इस तरह से बढ़ता जाता है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कॉल्ड factorial। All this will be studying in chapter called permutation and combination, PNC। सो एनीवे ये तो हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाह रहा था कि कैसे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अब सेट ए में से अगर मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, मतलब जीरो एलिमेंट है ना, एक ही वे था। इफ आई वांट टू सेलेक्ट एग्जैक्टली वन एलिमेंट, आई वांट टू सेलेक्ट एग्जैक्टली वन एलिमेंट, आई कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो। 3 एलिमेंट है, तीन में से मेरे को एक ही सेलेक्ट करना है। बताओ जरा क्या फॉर्मूला बनेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करके बताना। n इज हाउ मेनी, 3, r इज 1 एंड n-r। मॉर्निंग, बैठो, यू आर नियति, काव्य, राइट। सो व्हाट वाज योर स्कोर रिजल्ट? हाँ, इस बार कुछ हो रहा है, दोस्त बैठी हुई तुम्हारी, देखो मिलो। ठीक, गुड। मैथ्स में कितने? अरे 89 तो ठीक है, कोई बात नहीं। दैट्स, दिस यू ट्राई नाउ दिस ईयर 11th, बिकॉज आई नो पीपल हु गेट 96% in 10th class and it becomes 69 in, because सीनियर्स मिसगाइड, ठीक है, नहीं डिफिकल्ट तो है, बिकॉज देर इज वेराइटी ऑफ चैप्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स, एंड फ्रॉम 10th to 11th इज अ बिग जंप। सो दैट प्रॉब्लम इज देयर, बट कोई बात नहीं। 11th is the most important class for you, and let me tell you one more thing, that you are a early starter, so you guys are going to do very well, because our best results for architecture entrances from 2-year batch, most successful students, the higher ranked students. So that will gonna do very well. Past is over. This is the first and last time I asked your marks in of 10th class. अब मैं 11th की बात करूंगा सिर्फ, ठीक है। स्कूल में क्या चल रहा है? स्कूल में क्या स्टार्ट हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री। आई हैव स्टार्टेड विद सेट्स, ठीक है। तो आज हो सकता है तुम्हें कम समझ में आए, बट है ना, वही किया था, हाँ। या नो नो, आई मीन आई वाज जस्ट गिविंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा इन्फो कि नंबर ऑफ सेट सबसेट्स कैसे बनते हैं किसी भी सेट के। सो दैट यू स्टडी इन पीएनसी लेटर, बट
तो तीन वेज हो गए. तो इफ यू हैव ए सेट विच कंटेन्स 1 2 3, यू कैन सेलेक्ट नन ऑफ द एलिमेंट्स. एक ही वे हो गया. आई कैन सेलेक्ट एग्जैक्टली वन एलिमेंट, या तो मैं वन ले लेता हूँ, या टू ले लेता हूँ, या फिर थ्री ले लेता हूँ. ये सारे सबसेट हो गए दिवशा. अब नेक्स्ट चीज थी, उसको भूल जाओ, ठीक है, फॉरगेट दैट. आई कैन ऑल्सो टेक एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स. कौन से टू लें? वन को फिक्स कर लो एक बार. वन विथ टू, वन विथ थ्री. और क्या हो सकता है? टू विथ थ्री. और कुछ हो सकता है? नो नो, टू एलिमेंट्स के. कैन आई राइट थ्री वन? Yes, because in a set, repetition of elements and their order is insignificant. ठीक है, वो important नहीं है. And then I can go with the three elements, उसका एक ही सबसेट बनेगा. काउंट करो जरा, कितने सबसेट हो गए? 8. 8. Basically, cardinal number of the set was 3. Number of subset का फॉर्मूला हमें मिल चुका है. It is basically 2 raised to power n of the set, cardinal number of the set. तो किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट वुड बी 2 रेज टू पावर एन. ये फॉर्मूला कैसे आता है? बिकॉज साउथ एक्स बैच में किसी somebody asked me, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा था ये कैसे आता है. तो इफ यू हैव n distinct elements in a set, then you can select none of them, कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, वो होगा NC0. NCR का मतलब होता है selecting exactly R elements out of n elements. तो I don't select anything, NC0 हो गया. I select exactly one element, or I select exactly two elements, or I select exactly three elements, or in general, I can select all of them. And in fact, this comes from PNC and binomial, and this result equal to 2 raised to power n. So that's how you get the formula for number of subsets. लिख लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसके आगे. हो चुका है? हाँ, तो कोई बात नहीं, ठीक है. सुबह कौन सा स्कूल है तुम्हारा? सारा हो गया है. कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा करेंगे ना. और यहाँ के सारे टेस्ट होंगे MCQ विद नेगेटिव मार्किंग. ठीक है. गुड. ट्यूशन यू डोंट नीड फॉर मैथ्स. तुम छोड़ सकती हो ट्यूशन, ठीक है. ठीक है. नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता ना कई बार, यहाँ भी आना है. सो दैट इज व्हाई आई स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, कवरिंग ऑल दिस NCERT, देन आई मूव टू हायर लेवल. आगे बढ़े. लिख लिया? दिवशा हो गया? Yes. There's a question for you. This set X which has four elements, 1 2 3 4. Write all the subsets. पहले ये फाइंड कर लो कितने सबसेट बन रहे हैं. देन यू राइट. कैसे रैंडमली मत लिखना, कुछ मिस हो जाएगा. पहले जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, फिर जिसमें एग्जैक्टली दो एलिमेंट हो, फिर तीन, फिर चार, लाइक दैट. रैंडमली करोगे तो फिर मुश्किल होगा. स्टार्ट विद नल सेट, फिर एग्जैक्टली वन एलिमेंट, फिर एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स, एंड देन थ्री. टू वाले कितने बन गए? छह. ठीक है.
हम्म, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 2 4 दैट 16 है ना? हाँ, हो गए, 16 आ रहे हैं। अब मैंने वो फॉर्मूला परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्यों दिया था, उसका रीजन ये था, जैसे कि सपोज आई वांट टू नो कि दो एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे, तो मैं बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, चार एलिमेंट्स में से दो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चार एलिमेंट्स, हम सेलेक्टिंग टू। सो व्हाट आई डू, आई ओपन दिस फोर टू प्लेसेस, मतलब आई राइट 4 into 3 डिवाइड बाई 2 into 1, आंसर इज 6। तो एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स वाले तुम्हारे छह सबसेट बन रहे होंगे। वन, उसको अगर कैसे लिखना है उसका तरीका ये होता है, इसको फिक्स कर लो, 1 with 2, 1 with 3, 1 with 4। इसको फिर इसको फिक्स कर लो, 2 with 3, 2 with 4। फिर इसको फिक्स कर लो, 3 with 4, एंड लाइक दैट छह बन जाएंगे। एग्जैक्टली तीन एलिमेंट वाले कितने बनेंगे जरा देखो यहां से, 4C3, ओपन फोर थ्री प्लेसेस, 4 3 2, एंड थ्री को ओपन कर दो, क्या आंसर आएगा, 4। एग्जैक्टली तीन एलिमेंट वाले तुम्हारे चार सबसेट बन रहे होंगे। उसको कैसे करना है, उसको करने का तरीका था, फिक्स टू एलिमेंट्स, 1 2 with 3, है ना, with 1 2 with 4, उसके बाद 2 3 with 4 एंड 1 3 with 4, एंड देन सेट इट सेल्फ। सी सी वो उसका मैंने बताया था ना, ये वाला कॉम्बिनेशन का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज चैप्टर। उसका फॉर्मूला ये होता है कि जैसे सपोज यू वांट टू फाइंड आउट 10C2, मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ। सो 10 को दो प्लेसेस ओपन करो, कंटिन्यूड, मतलब डिक्रीजिंग नेचुरल नंबर्स में 10 के बाद क्या आता है नंबर छोटा, दो प्लेस ओपन कर दिया, खत्म। उसके बाद 2 को ओपन कर दो, 2 के बाद 1 आएगा, नेचुरल नंबर लेना है। तो क्या आंसर आ रहा है, 45। सपोज किसी रूम में 15 लोग हैं, हर आदमी दूसरे आदमी से हैंडशेक कर रहा है, ठीक है, हाउ मेनी हैंडशेक विल बी देयर, बताओ। 15 people in a room and everybody shaking hand with another person. So how many handshakes will be there? Divsha, into 14 upon 2. see 10 को ओपन किया ना, फिक्टोरियल होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट, नहीं, फिर तो हैंडशेक की जगह फिंगर शेक करना पड़ेगा, वो सारे डबल अलग अलग काउंट होंगे। दिव्या का आंसर सही है, बट दिव्या कैसे? बिकॉज दो प्लेसेस ओपन करेंगे, दो हैंडशेक हो जाए। अच्छा अच्छा, तुमने वो फॉर्मूला लगा दिया बिना सोचे समझे। हाँ, देखो, कोई भी आदमी खुद से तो हैंडशेक करेगा नहीं कि हाँ भाई ठीक है, हाउ आर यू, कभी किया तुमने? आज कर सकते हो, तुम लोगों का अच्छा रिजल्ट आया है कि वेल डन। तो 15 पीपल आर देयर, तो हर आदमी रिमेनिंग कितने लोगों से हैंडशेक करेगा, 14। एक आदमी 14 लोगों से हैंडशेक करेगा, नो डाउट। 15 लोग कितने से करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, लेकिन इसमें डबल काउंट हो रहा है, ए ने बी से किया, बी ने ए से किया, डबल काउंट हो गया, डिवाइडेड बाई 2, ये इसका आंसर है। बट हिंट वाज दिस, 10 15C2, फॉर हैंडशेक यू नीड टू पीपल। So we could have used this formula, 15C2, open 15 two places, टू प्लेसेस का मतलब है डिक्रीजिंग, अगर ये 10C2 होता 10 के बाद 9 आता, लाइक दैट, एंड बी 2। सो नेक्स्ट करो। यस, नंबर ऑफ सबसेट्स।
इस असाइनमेंट में होगा ना, जब पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो। यस, सेट, हेलो, बट शी हैज ऑलरेडी डन, इन केस शी हैज सम डाउट आई टेक केयर ऑफ दैट। हम्म, I, हाँ, in case she misses or she is not well, she can attend online class also at some time. Uh, five. हाँ जी, 5 year. 5 students are there. Two online and these 3 students. So this set P contains 0, it contains 5, it contains set containing 5. A set might contain a set it's also. तो कितने एलिमेंट्स हैं सेट में? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? इसका कार्डिनल नंबर बताओ। क्या बात कर रहे हो? 2 या 3 कैसे हो सकते हैं? इफ आई आस्क यू हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस क्लास, और 3 or 4? Yes, this is 1, this is 2, this is 3, right? If I give you another set, say S, which is say 5, 5 and 0, 5. अब बताओ कितने, what is the cardinal number of this set? दिव्या कितना, क्या कार्डिनल नंबर इसका? थ्री। क्या बात कर रहे हो? 1, 2, 3, 4 नहीं? नहीं, वो एक ही एलिमेंट हो गया। चलो ठीक है। So then even the set contains many elements will be considered as one, ठीक है? अब इन दोनों क्वेश्चंस के तुम सबसेट बना लो। यस, हाँ, तुम्हें ब्रैकेट बनाने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। तो दिव्या, तुम्हारे मार्क्स सिस्टर से ज्यादा हैं या उससे कम थे? उसका बोर्ड ऑनलाइन हुआ था और उसके 96 आए थे और मेरे ऑफलाइन में 98 आए। क्या बात है, तुमने बीट कर दिया उसको। गई वो गई, शी वेंट बैक। ओके। He came home for 2 months. हम्म। Shikshantan, I have 2 more students, but they're in 1 year program. Shanaya is there. You know Shanaya? अभी आई हुई है अगस्त से। अच्छा हाँ, they study physics also here with me. Shanaya and Agast. पहली मैथ्स है, उसके बाद you have drawing. And Saturday you, हाँ, and Saturday you have I think drawing पहले, aptitude पहले, उसके बाद मैथ्स क्लास। अच्छा, एप्टीट्यूड पहले, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स ऑन सैटरडे। हाँ, तो पहले वो डेज। It's aptitude regarding, like in aptitude she'll be doing GK part and architects, and then she'll be doing those kind of drawings. They call it perspective. So she'll teach you that. कौन सा? हाँ, वो होगा, तो मैम से मिल जाएगा तुम्हें। दिव्या, तुम चैट बॉक्स में भी तुम अपना आंसर लिख सकती हो। इतना बड़ा आंसर कहाँ से लिख दूँ? नहीं, वो नोट आ जाएगा कंप्यूटर में, तो आ जाएगा, कंप्यूटर से बाहर नहीं निकलेगा वो। नल सेट कहाँ है इसमें? अच्छा ठीक है। मेरे कीबोर्ड में फाइल नहीं है। छोड़ो, कोई बात नहीं, रहने दो, लीव इट। तुम्हें कर लिया है ना? हाँ। हम्म। काव्य को?
You have this assignment? लो. फाइव को पूरा ऐसा लिखा करो ना. ऑल थ्री डन. दिव्या, अब एक काम करो, असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं सबसेट्स के, वो कर लेते हैं फिर उसके बाद. यू हैव डन ऑल. यू शुड स्टार्ट विद नल सेट, है ना? ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, 8, 9, 10. हम्म. अच्छा, तुम्हारा तुम्हारा दे दिया. I'll get another one. 8, 9, 10. Yeah. But if you write zero inside the bracelet, it'll become a set.
इसको छोड़ दो, जो हमने कर लिया ना, यू कैन लीव दैट। जो रिपीट हो रहा है उसको मत करो। ओके, नहीं वो कर लो। She is no, not this batch. Shania, she's in 1 year program. Hmm? She, I think, design or what? She not in architecture. Okay. Okay. ठीक है। एक काम करो, ये वाला और ये किया हुआ है ना, और ये वाला, इन दोनों को बोर्ड पे लिख दो। दैट फाइव ब्रेसेस में फाइव। हाँ, ये वाला। दिस साइड। या। तो स्टार्ट विद नल सेट करो ना, नल सेट से शुरू करो, फिर 1 1 वाले, फिर 2 वाले, बस हो गया। तुम रैंडमली कर रही हो ना, इसलिए लेफ्ट हो गया होगा। 1 विद द सेट, 1 के साथ ये वाला सेट बनाओ। हाँ। ठीक है, गुड। दूसरा कलर चेंज करके उससे कर लो नेक्स्ट। हम्म। नहीं, नल सेट एंड, हाँ, बिकॉज 2 रेज टू पावर 0 हो गया ना, बिकॉज नल सेट हैज 0 एलिमेंट, तो एक 5 रहेगा। गुड। डन। हो गया।
फाइव वाला कौन सा था जिसमें सिर्फ फाइव था ना? नहीं, दोनों में डिफरेंस है। दिस वन इज बेसिकली नल सेट। हाँ, हाँ, दिस नॉट ए null set. This is a set. Uh, yeah, this is basically a singleton, a set containing exactly one element, and this is the null set. Divsha done all? I'm doing the 10th question. चलो ठीक कर लो. Right. Proper subset and improper subset. What is a proper subset? Any idea? नहीं, वो तो तुमने बता दिया, एग्जाम्पल दिया है. डेफिनेशन क्या होना चाहिए? दैट इज एन एग्जाम्पल. इफ आई आस्क यू, नहीं वो तो हो गया ना. व्हाट यू आंसरिंग इज एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट डेफिनेशन. जैसे भाई आस्क यू व्हाट इज पोल ऑफ ए मिरर, क्या बताओगे? पोल ऑफ ए मिरर. पोल, पोल, पीओ, अ मिरर. पढ़ा होगा ना तुमने. It is a point of intersection of the principal axis with the mirror. That is, so that is the definition. So proper subset का मतलब होता है a subset of a given set which has at least one element absent which is there in the given set. ठीक है. वहाँ वो वही डेफिनेशन वही कहलाती है. लिखो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन. इट इज अ सबसेट. इट इज अ सबसेट of a given set. It is a subset of a given set which does not have, which does not contain at least one element, which does not contain at least one element which is there in the given set, which is there in the given set. मतलब सिंपल लैंग्वेज में प्रॉपर सबसेट में कम से कम एक एलिमेंट छूटना है. यू हैव टू लीव वन एलिमेंट. तो यहाँ पे इसको छोड़ के all these are, this is a proper subset because 4 is missing. This is a proper subset because 1 is missing. This is 2 is missing. This is 2 and 3 missing. This is a proper subset because 2 3 4 missing. और ये तो बहुत जोर से सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, सब कुछ ही मिसिंग है. So how many proper subset would be there for a given set? 2 raised to pi n minus 1. लिख लेना ये भी. So number of proper subset कितने होंगे? 2 raised to power n minus 1. And then what is improper subset? The set it's. So improper subset will be that subset which has all the elements of the given set. हाँ. Improper subset is that subset which has all the elements of the given set. उस given set के सारे elements हैं. So उस particular case में ये हो जाएगा improper subset. So how many improper subsets are there? 1. The set itself will be always improper subset. दिव्या लिख लिया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो पावर सेट ऑफ ए सेट.
What is power set of a set? Good. लिख लो. Power set of a set is the set of all subsets. Power set of a set is set of all subsets of a given set. बहुत सारे सेट्स आ गए ना इसमें, 5 टाइम्स. बस. तो किसी भी सेट का अगर पावर सेट लिखना है तो यू राइट ऑल द सबसेट्स एंड देन चुपके से ब्रैकेट बना दो. दैट इज अ पावर सेट. कैसे रिप्रेजेंट करना है? दिस इज पावर सेट ऑफ एक्स, है ना? एंड व्हाट अबाउट दिस? सपोज दिस सेट इज आर. सो if I write all the subsets, put them in braces like this is power set of R. Next question, power set क्या है वो भी कर लो अब. Question 11 वही है ना? कर लो. दिव्या क्वेश्चन 11 करो. तो नोटिस वन थिंग, पावर सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सेट्स होंगे, है ना? एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट विल बी ऑलवेज सेट्स. हम्म. Yeah, it will give good practice of making brackets. इस वाले में. एंड इन केस यू राइट सबसेट ऑफ अ पावर सेट, एक वो ब्रैकेट आ जाएगा फिर. ठीक है, तो उसको वहीं पे लगा दो. हाँ ठीक है. हाँ ठीक है. वो क्या है? दैट शो यू पैशनेट अबाउट ड्राइंग, है? हाउ टू राइट? यू ऑल्सो हैव फाइन आर्ट्स? यू पीसीएम विद पीसीएम तो हो गई आर्किटेक्चर के लिए, फाइन आर्ट्स. अच्छा. क्यों? Hmm. Yeah, that's quite varied, you know. Divsha done? Doing the last question. Okay, कर लो. हम्म. क्या? 1 2 3 वाला छोड़ दो. With that you already done the. She has done it. Good.
चलो छोड़ दो उसको, ठीक है। मेरे को अब ये बताओ, इफ आई टॉक अबाउट दिस सेट, ठीक है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स, cardinal number of power set. So it'll be the same as number of subset of x. Number of subset of x kitna tha? 2 raised to power 4. That's 16. And the cardinal number of this set is also 16. So it will be 2 raised to power n of x. ठीक है? So in general, if you have, यहाँ तो इसका आंसर 16 आ जाएगा. 2 raised to power 4, which is 16. So in general, if you have a set A whose cardinal number is n, then power set of A will have cardinal number 2 raised to power n or 2 raised to power n of A. This result you can write down. My next question is कि पावर सेट ऑफ x के कितने सबसेट्स बनेंगे? एक काम करते हैं, लेट्स कंसिडर छोटा सा सेट ले लेते हैं. Suppose some set A is there which contains exactly two elements. So हाँ, तो this is phi null set. एक सबसेट बना containing exactly one, दूसरा exactly two, then one and two. So these are the subset. इन सब सारे सेट्स को मैंने पावर सेट में डाल. This is power set of A. So as you can see over here, cardinal number of power set of A is basically 2 raised to power 2, that is 4. Okay. Now the question is, what will be the number of subset of power set of A? 16. So can we write this in the terms of formula? If you have a set A in general, any set whose cardinal number is n, then number of subsets of P of A will be 2 raised to power. Is it fine? Because cardinal number इसका कितना था? इसका cardinal number था 2 raised to power n of A. This was the cardinal number of power set of A, right? This was cardinal number of power set of A. तो उसके भी सबसेट कितने बनेंगे? 2 raised to power n. अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? Slightest doubt, ask. If you feel 2 plus 2 is not 4, we'll discuss. देखो, कोई सेट है, उसका कार्डिनल नंबर n है, उसके हमने सारे सबसेट लिखे, वो बन गया कार्डिनल नंबर ऑफ द पावर सेट. अब इसके भी तो सबसेट हो सकते हैं. एक काम करो तुम, इधर आओ, बोर्ड पे आ जाओ. इसके सारे सबसेट सब लोग नहीं, हाँ, नाराज मत हो तुम. इसके सारे पावर सब लोग बनाओ. इसके सारे सबसेट बनाओ. पावर सेट ऑफ ए के सारे सबसेट लिखो. इसके सबसेट से तो लिखने हैं. 4 एलिमेंट है ना इसके, तो कितने सबसेट बनेंगे? नहीं नहीं, ये कुछ और है अब. उसका तो तुमने किया हुआ है. देखो, इसका भी नल सेट ना. पहले नल सेट लिखो 5. ठीक है. अब एग्जैक्टली वन वाले बनाओ. हाँ. सेम कैसे हो गया? इसका मतलब मैं सबसेट समझी नहीं तुम. मान लो अगर यहाँ पे ए होता लिखा हुआ, तो उसका सबसेट क्या बनता? ब्रेसेस में होता ना, लेकिन वो, तो ये एक एलिमेंट है, तो उसको ब्रेसेस में डालो, एक और ब्रैकेट नहीं लगेगा यहाँ पे. सबसेट लिखने हैं हमें, ठीक है? जितने लिख सकते हो लिखो, फिर नेक्स्ट ये लिख लेगी. ये तो काव्या लिख देगी, इसको मजा आ रहा है बोर्ड पे लिखने में. हाँ, एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाला एग्जैक्टली टू. तो एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाले 4 हो गए तुम्हारे. एक तुमने मिस किया तुमने कभी भी. ये एक एलिमेंट है इसका. इसका बनाओ यहाँ पे 5 इनसाइड द ब्रेसेस. ये तुम्हारे नल सेट हो गया.
और एग्जैक्टली वन वाले सारे हो गए। अब एग्जैक्टली टू वाले कितने बनेंगे? 6। क्या बताया था मैंने तरीका? 5 से शुरू करो, 5 विद दिस लाइक दैट। दिवशा, सबके पावर सेट के सबसेट बनाने, ठीक है? जो पावर सेट ऑफ ए है, हाँ ये एक हो गया। यहाँ गलती होगी ना, ये वाला ब्रेसेस क्यों आएगा? या तो 5 है वो तो सिर्फ, तो उसको इरेजर पे लाओ, स्मॉल, ये हटाना पड़ेगा। सेट, ये तो 5 है। या तो तुम सिर्फ ब्रेसेस लगाती है, अभी रुको, हाँ कर लो, ठीक है। 5 के साथ 2 कर दो। नहीं, 5 के साथ 2 भी कर सकती हो। 5 के साथ 2, 5 के साथ 1 2, ऐसे किया था ना पिछली बार भी हमने। दो एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स वाले 6 बनेंगे। हाँ राइट, गुड, ठीक है। कितने हो गए एग्जैक्टली टू? 3 हुए हैं अभी सिर्फ अभी। अब देखो, 5 विद 1, 5 विद 2, 5 विद 1 2 है ना। अब स्टार्ट विद 1, सेट कंटेनिंग 1 के साथ 2, फिर सेट कंटेनिंग 2 के साथ 1 2, ठीक है, कर लो। हाँ, ये 2 आ गया। फिर 1 के साथ 1 2 आएगा। 3 के बना रही हो? अब हाँ, अब देखो डू वाले कितने हो गए तुम्हारे? 6 हो गए ना, बस। हाँ, नहीं एग्जैक्टली टू एलिमेंट वाले 6 हो गए ना, राइट। अब एग्जैक्टली 3 वाले लिखो। रेड पेन ले लो, रेड कर लो कलर, ताकि पता लग जाएगा हमने 3 वाले बनाए। इसमें क्या करो, 2 एलिमेंट फिक्स कर दो, 5 and 1 फिक्स करके, विद 2 के साथ, 5 1 विद 1 2 के साथ। वही 16 बनेंगे ना। हम्म। अभी क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज तक गया ना। अब मैं तो दिन में 6 घंटे लिखता हूँ, संडे को तो मेरी 8 घंटे क्लास होती है। 3 एलिमेंट्स वाले दिल बी 4 सबसेट्स। 5 1 के साथ 2, 5 के साथ 1 2। अब 5 को हटा दो, 1 2 के साथ 1 2। तुमने इसको थोड़ा शिफ्ट कर लो। शी तो, शी गॉट 100 100 100 100 100। इसको बाकी डिजिट पसंद नहीं है, 0 0 1। 1 2 and 1 2, ठीक है। अब एक और मिसिंग है तुम्हारा, 3 वाला। इसी रो में आगे लिख दो। एक और आएगा, कौन सा आएगा देखो। थिंक योर सेल्फ, कौन सा होना चाहिए? हाँ, दिवशा तुम्हारा हो गया। एक और बचा है, सेड इट सेल्फ। सेड इट सेल्फ। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, 5 को सबसे पहले लिख दिया उसने, वो देखो, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, है ना, लिखो। जिसमें फॉर करेक्ट विल बी 10 क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स के, ठीक है। ट्रू अगर होगा वो तो तुम्हें मिलेंगे +1। फॉल्स होगा, गलत तुम्हारा आंसर होगा तो -4। अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो -8, ठीक है। हाँ मतलब अटेम्प्ट करना जरूरी है, जस्ट फॉर फन। अब तुम्हें सारा पता लग चुका है,
पावर सेट का कार्डिनल में पता लग चुका है, सबसेट के बारे में पता लग चुका है, सबसेट एंड सुपर सेट पता लग चुका है, एंड यू ऑल्सो नो अबाउट बिलोंग्स टू एंड ऑल दैट स्टफ। चाहो तो 5 मिनट्स पे टाइम भी नहीं बचेगा, 1-2 मिनट ले लो, जो भी कुछ रिवाइज करना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। आई गिव ए क्वेश्चन ऑन ए सेट, नहीं पास में नहीं, दूर दूर बैठना है, यह भी सही है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सुपर सेट ऑफ, जस्ट दिव्या लिख लिया? ऑल राइट। अब एक क्वेश्चन, टाइम भी हमारे पास 15 मिनट बचे ना अभी, नहीं वो टाइम तो है ना, 5:30 आज तो क्लास। हाँ गुड, ठीक है। तो फिर यू हैव 5 मिनट, जस्ट रिवाइज कर लो। अरे तुम्हें तो मैंने किया हुआ है सेट, सो बिलोंग्स टू, सबसेट, डज नॉट बिलोंग तो मालूम ही है ना। लाइक जैसे ये है, ये सिंबल क्या है? बिलोंग्स टू। ए डज नॉट बिलोंग, हाँ राइट, बताया ना इतना तो। अगर डर लग रहा है तो फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे वो। अभी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लो, 12th क्वेश्चन करो, ठीक है? 12th करो पहले, पूरा नहीं। हाँ, दीक्षा क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा बताओ? हम्म, इसको रीड करते हुए सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना, या तो सेट, तुम यू कैन राइट द एलिमेंट्स इन अ सेट, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, एक्स एक्स इक्वल टू 0, so 0 is the answer. It can't be an null set. It contains basically element 0. तो ये false हो गया, हाँ। This such that, the same as this. और मेरे ख्याल से जहाँ पे false आ रहा है उसको तुम करेक्ट भी कर सकते हो, कि करेक्ट क्या होना चाहिए। R is set of Z integers. I, Q is basically rational numbers, A by B, and T is irrational number. Irrational numbers are those under root n and all that. So R minus Q is irrational number. This is subset, अभी जो किया था ना, that is subset only. हाँ, they asking is it a subset of this or not, तो of this, हाँ तो बताओ ट्रू है फॉल्स है? क्यों? अरे इट इज बिकॉज वन में है ना, इस सेट में ये सबसेट के लिए तुम्हें एलिमेंट देखना होता है, इसमें यू हैव दिस एलिमेंट, तो मतलब इसके अंदर है ना वो। हो गया। क्या हुआ दीक्षा? आई हैव डन इट, द क्वेश्चन 12। हाँ 12 करना है, यू डन? ओके। हाँ 1 मिनट, फर्स्ट फोर सब लोगों ने कर लिए? दीक्षा फर्स्ट फोर का आंसर बताओ, फर्स्ट फोर का ऑर्डर बताओ क्या आ रहा है? फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू। ट्रू, 3 झूठ 1 सच, यही आ रहा है? ओके। ऐसा कौन सा फॉल्स है तुम्हारा?
काव्या नेक्स्ट फोर बताओ। ट्रू, फॉल्स। ये सही है। दिव्या नेक्स्ट फोर का देखो। ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। एट्थ वाला अलग आ रहा है। एट्थ क्या आ रहा है? एट्थ वाला फॉल्स आ रहा है। फॉल्स आ रहा है। इधर ही सबसेट में एक और ब्रैकेट आ रहा। एट तो ट्रू तो है। इट्स ट्रू। इट्स देखो नॉट दिव बिलोंग, इट्स दे, सबसेट वाला साइन। देखो दिस इज बिलोंग्स टू है ना। नो, इट्स सबसेट वाला साइन। अच्छा, वो हो सकता है वो क्वेश्चन चेंज हो गया असाइनमेंट में ना। ठीक है, और मे बी लाइन इज मिसिंग। ठीक है, ऑल राइट। ऑल राइट। ओके ओके। नाराज मत हो। नेक्स्ट तुम बताओ। नाइन, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। कोई बात नहीं, जो तुम्हारा है तुम अपना कर लो। नाइन फॉल्स है। हम्म। तो अगर बनाना है तो ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट में पाए। ये एलिमेंट है वो। अगर ये होता ना बिलोंग्स टू लाइक दिस, देन इट वुड बी ट्रू। हाँ ठीक है। डन हो गए, सारे हो गए कवर। लास्ट क्या था? लास्ट इज ट्रू। ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन। नहीं, कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है। जस्ट फॉर फन, सपोज दिस सम सेट गिवन टू यू ए, which has element 1, 3, 1, 4 and 2. This some set given to you. I'll write some question based on this. हाँ कॉमन है। सो दीज क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, फिर आराम से सोच समझ के टेक ऑन टाइम, दिस नो हरी, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मार्किंग। -1, +1 फॉर करेक्ट, -4 फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, -8। सबको अटेम्प्ट करना है। आंसर बोलना नहीं है, इसमें लिखना अपना, ठीक है। हम्म। आराम से सोच समझ के, ठीक है।
नो हरी, टेक योर ऑन टाइम। सबसेट का सिंबल पता है ना, सी बिलोंग्स टू बीच वाला, एप्सिलन जो होता है। नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज टू पावर n, so that is a, that is power set of it. Think loudly, think loudly. सोच लो, फुल आने चाहिए। 10 on 10। If you choose not to answer, -8.
तुम एक काम कर सकते हो, पावर सेट ए लिख लो एक बार ना इसका, फिर तुम्हें आइडिया लग जाएगा। सेट ए दे रखा है, उसका पावर सेट ए लिखो, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन पावर सेट पे ही है। वंस यू राइट, कर लें डिस्कस, बस कर लिए। दिवशा हो गए सारे क्वेश्चन? दिवशा डन? यस। देख लो एक बार, रिवाइज कर लो। पहले का क्या आंसर है? पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ, फॉल्स। क्या बात कर रहे हो? हाँ, पक्की बात है? इट इज फॉल्स। वन सेट कंटेनिंग 1,3 इज बेसिकली एलिमेंट ऑफ पावर सेट। अगर हम इसके पावर सेट के सबसेट, इसके ए के सबसेट लिखेंगे, somewhere will be this, will also be there, and that will be inside braces. This would be power set of A. This is basically an element of the power set. It is not a subset. Perfect. Good. हाँ, I got second rank in my school. ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। फिर तो तुम्हें ट्रीट लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन ट्रीट कैसे लेते हैं? फोटो भेज दूंगी। ठीक है। गुड, नाइस। सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है? दिव्या, फॉल्स और ट्रू? ये फॉल्स। लोग क्या बात करें, इनकी बात मान रहे हो तुम भी? अरे मेरा भी फॉल्स, मुझे उनका सुनाई नहीं देता, मुझे सिर्फ आप ही सुनाई देता। ये लोग ट्रू बोल रहे हैं। तो मेरा फॉल्स आ रहा है। अच्छा, सो इनफैक्ट जब हम इसके सबसेट लिखेंगे, उसमें वन कहीं ना कहीं आएगा, है ना? हम्म। वन सबसेट आएगा, ये कहीं आएगा। दिस इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। लेकिन अगर मैं इसके भी सबसेट बनाऊं तो आई नीड टू राइट वन मोर ब्रेस, है ना? ऐसे एक और लिखना पड़ेगा, देन दिस विल बी ट्रू, है ना? ये ट्रू था, हम्म। तो ये सरासर झूठ है ना? फॉल्स। थर्ड। हम्म। दिव्या, मेरा तो फॉल्स आ रहा है। हाँ, फल से खा लेने का टाइम आ गया ना, गर्मी आ गई है अब। ट्रू है या फॉल्स है ये? फॉल्स आ रहा है। नंबर ऑफ सबसेट, ये बताओ मुझे कितने हैं? ए के कितने सबसेट बनेंगे? ए के कितने एलिमेंट्स हैं? 4। चार, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने? 2 to the power 4। जबकि ये क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू दिस। अच्छा। तो ये तो सच है। फॉर करेक्ट यू गेट +1 और इनकरेक्ट -4। सबका नंबर आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट बताओ अब। 2,4 इज सबसेट ऑफ ए। क्या बात कर रही हो दिव्या? फॉल्स। देखो, फॉल्स पे भी पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ट्रू लिखो किसी का। अच्छा, फिफ्थ का बताओ। फिफ्थ का क्या है? फॉल्स आ रहा है। आ रहा है? हाँ। बिकॉज, हाँ, अरे हार्ट बीट बढ़ने दो ना। 1,2 ये इसका एलिमेंट है। सेट कंटेनिंग 1,2 इस एलिमेंट ऑफ पावर सेट, है ना? जब उसके हम सबसेट बनाएंगे, तो ये अगर क्रॉस नहीं होता, इट इट वुड हैव बीन ट्रू, तो ये फॉल्स। सिक्स्थ, 1,4 और एक और ब्रैकेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ। तुम बताओ अपना, ट्रू क्यों है? ट्रू है? नहीं, क्यों है ट्रू? यस। हाँ, तो इट सेज
this is basically belongs to power set of A. It says is not, it is not a subset, so it's true. Uh, 2, 7, 2, 3. See, when I write subset of A, 2, 3 would be somewhere here. So set containing 2, 3 element of power set, ये तो बहुत जोर से true है ना? नहीं, false है. Belongs to the सिर्फ एक ब्रैकेट आएगा. अगर ये सबसेट होता फिर ट्रू होता. ये false है. दिव्शा, false. देखो, जब तुम ए के सबसेट लिखोगी तो ये आएगा. ए के सबसेट में आएगा ना ये. दिस इज बेसिकली एलिमेंट ऑफ द पावर सेट. इसमें तो लेकिन दो ब्रैकेट आ रहे हैं. इट इज नॉट ट्रू. इट बी ए सबसेट. ये एक एलिमेंट है. दिस एलिमेंट ऑफ दिस इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए. यस. अगर ये ऐसे कट में कर दे तब ये ट्रू होता. एट्थ, बिकॉज फाइव इज ऑलवेज एलिमेंट ऑफ एनी. हाँ, देखो फाइव तो आएगा ना वहां पे. जब तुम एक ही सबसेट लिखो तो सबसे पहले फाइव ही आएगा. तो फाइव इज एलिमेंट ऑफ. तो ये भी सरासर झूठ है. नाइन्थ, टू इज नॉट सबसेट ऑफ ए. हम्म. बिकॉज जब तुम इसके सबसेट बनाओगे तो टू कहीं ना कहीं आएगा ही ना. इसका सबसेट टू तो है ही. वन भी है, थ्री भी है. ये सारे सबसेट है. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. द लास्ट. परफेक्ट. अच्छा, वो आ गए ना मार्क्स. दिव्शा एक गलत. एक थर्ड वाला गलत. चलो कोई बात नहीं. तुम्हारी जगह मैं होता मेरे काफी ज्यादा गलत होते हैं. राइट, अब आगे बढ़ते हैं. ऑपरेशन ऑन सेट्स. ऑपरेशंस ऑन सेट्स. सबसे पहली ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स. So suppose you have two sets A and B. So this is you read as A union B. When you write U in between, it is A union B. And set builder form में क्या लिखोगे? X such that X belongs to A or X belongs to B. ठीक है? या तो एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा या फिर बी को बिलोंग करेगा. दोनों को भी हो सकता है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. हाँ, बट दिस सिंबल इज फॉर और एंड दिस सिंबल इज फॉर एंड. वी इज फॉर और, पर सिंबल पता होना चाहिए तुम्हें, अच्छा रहता है. बाई चांस कुछ. हाँ, चैनल भी मतलब और, इन्वर्टेड चैनल भी मतलब एंड. अब जरा देखो, सपोज कोई दो सेट मेरे को दिए हुए हैं. ए इज से 1 2 3. set B is 2 3 5 6. So what is A union B? Why not 1? बट यहाँ पे एंड नहीं है और है ये. यस, ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट, मतलब रिपीट नहीं होंगे बट. हाँ, देखो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए और एंड बी बोथ. यस, कॉमन. सो यूनियन में हमेशा आंसर बड़ा आएगा. यस, whenever you find union of set, it will be always a bigger answer, or maybe equal also, depends if the two sets are equal or not. So you write the repeated elements once and then remaining ones. So that is
यूनियन ऑफ टू सेट्स। एक और होता है यूनिवर्सल सेट जिसको बोलते हैं, वो भी कर लेते हैं एक बार। यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिवर्सल सेट इज बेसिकली अ सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। लिख लो इसकी डेफिनेशन। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, नो नो, यूनिवर्सल सेट इज superset of all the sets under consideration. Universal set is superset of all the sets under consideration. जैसे कि there's a question which deals with say integers also, natural numbers also, whole number also, and irrational number also, and you can say that rational and irrational number also. इन सबका सुपरसेट क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। इन सबका सुपरसेट हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स विल बी सुपरसेट ऑफ इवन द रियल नंबर ऑल्सो, इमेजिनरी नंबर एंड द रियल नंबर। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर वुड बी, रियल नंबर भी होंगे उसमें और इमेजिनरी नंबर उस उधर ही रख दो, और इमेजिनरी नंबर भी आ जाएगा। Like till now, if somebody asks you what is root of -1 or root of -2, we'll say, what is this? It's not possible. But we'll study in complex number. Root of -1 is iota. हाँ, इसी साल करेंगे। इस चैप्टर के बाद हम कर लेंगे ट्रिगो, एंड देन मे बी सीक्वेंस और कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम लोग मेरे को बता देना क्या करना है इन केस। हाँ, ट्रिगो कर लेंगे। और इन केस यू हैव सम काइंड ऑफ टेस्ट गोइंग ऑन इन स्कूल, यू वांट टू आस्क समथिंग जो मुझे। हाँ, हाँ तो अभी हो ही जाएगा ना। अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो यू कैन लेट मी नो एंड यू कैन कम बिफोर द क्लास। लाइक ट्यूसडे क्लास स्टार्ट एट 5 o'clock, यू कैन कम अर्लियर 1 hour। तो आई टीच यू एक्स्ट्रा जो भी पढ़ना है, एनीथिंग। राइट, सो ए यूनियन बी में हमेशा आंसर बड़ा आएगा। यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया? तो यूनिवर्सल सेट इज सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स इन ए गिवन क्वेश्चन। उन सबका बड़ा सेट होगा। अब यू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट? एक क्वेश्चन बताओ मुझे। इफ आई फाइंड ए यूनियन फाइव तो क्या आंसर आएगा? ए यूनियन ए क्या आंसर आएगा? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या आंसर आएगा? या इल बी ऑलवेज ए बिगर सेट, है ना? तो फाइव तो बेचारा कुछ भी नहीं है, तो इल बी ए ओनली। ए यूनियन ए वुड बी ए ओनली। एंड इन दोनों में कौन सा बड़ा सेट है? यूनिवर्सल सेट। लिख लेना ये। Now, one question for you. If A is A union B is say B, what can you say about the relation between A and B? बताओ। A is the subset of B. A subset of B। देखो, की इज दैट यूनियन से हमेशा बड़ा आंसर आता है। तो अगर ए यूनियन बी बी आ रहा है मतलब बी बड़ा सेट है ना। यस, सो इफ बी इज अ बिगर सेट दैट मींस ए इज सबसेट ऑफ बी। इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। यूनियन ऑलवेज गिव यू बिगर आंसर। यूनियन ऑफ सेट ऑलवेज गिव्स द बिगर आंसर। बड़ा जो सेट होगा वो आंसर आता है। तो ए यूनियन बी का अगर आंसर बी आ रहा है मतलब बी इज ए बिगर सेट। जो बड़ा है वो सुपर सेट हो गया। ये लिख लिया। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन इज inverted U. It will be like this: X such that X belongs to A and, मतलब वो एलिमेंट दोनों में होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट यू कैन से इन कॉमन। दिस इज एंड, इज एंड। यस, हाँ, से इसमें कॉमन आएगा। जैसे कि इफ आई टेक दिस एग्जांपल, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? वो एलिमेंट जो कि कॉमन है।
इसमें भी 2 3 आ रहा है, इसमें भी 2 3 आ रहा है. So intersection of two or more sets will always give you the smaller answer. And it may be possible that two sets have, हाँ वो भी करेंगे इसके बाद, it has a null set. If P intersection Q is a phi null set, what does it mean? There's nothing in common. So such sets which have nothing in common, this is called, बताओ, disjoint sets. उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. For example, set of even numbers, set of odd numbers, दोनों का intersection 5 आएगा. So they're disjoint sets. But set of prime numbers and set of even number का intersection 2 होगा, because only one. Yes. तो intersection of two sets will always give you answer which is the smaller one. ठीक है, छोटा सेट आंसर आएगा. दिव्शा हो गया? अच्छा, क्लास का टाइम भी हो गया. ऑल राइट, दैट इज इट. तुम्हारी अभी नेक्स्ट क्लास भी होगी ना 15 मिनट्स में. यू हैव टू शिफ्ट इन अदर क्लास. ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू, एंडिंग द क्लास. Thank you. एंड हैव फन. हाँ हाँ, आफ्टर द रिजल्ट हैव फन, स्पेंड गुड टाइम विद योर पेरेंट्स. अच्छा, ओके.